سعودی عورتیں مہینے میں ایک دن نابالغ لڑکے کے ساتھ کیوں گزارتی ہیں، یہ راز جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 12 سال کی عمر میں میرے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میں تو اپنے والد سے ملنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھ پر ہی ایک بھاری ذمہ داری آ جائے گی۔ ابھی میری ملاقات ایک عربی عورت انابیہ سے ہوئی، جس نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا، اسے بھلا مجھ سے ایسا کیا کام ہو سکتا تھا جس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ دے رہی تھی۔ مجھے اس کی پیشکش سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ اس عورت نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام زہیب ہے، میں صرف 12 سال کا تھا۔ اپنے والد سے ملنے کے لیے میں سعودی عرب آیا تھا اور میرے والد مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کا بہت برا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ پوری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ جب ایئرپورٹ پر ابا کی جگہ ان کے دوست مجھے لینے کے لیے آئے اور یہ خبر سنائی کہ میرے ابا اسپتال میں پڑے ہیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پاکستان سے میری اماں نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تھا اور یہاں مجھے ابا لینے آنے والے تھے، لیکن ابا کے دوست کو دیکھ کر اور ساری بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں بہت ضد کر کے سعودی عرب آیا تھا کیونکہ میرے اسکول کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں اور میں کچھ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور سعودی عرب گھومنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری ضد پر ابا مان گئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے یہاں آنے پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں اسپتال پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے کہ میرے ابا بہت ہی بری حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ان کا سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی کافی ساری ہڈیوں میں فریکچر ہوا ہے۔ ابھی یہ پریشانی چلی رہی تھی کہ پتہ چلا کہ کمپنی نے ابا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر انہیں چھٹیاں دے دی ہیں اور ابا کے پاس اگلے 6 مہینے تک کوئی کام نہیں ہے۔ کمپنی ابا کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے 6 مہینے کے لیے ابا کو فارغ کر دیا تھا اور ابا کی جگہ کسی دوسرے بندے کو بھرتی کر لیا۔ جب ابا ہوش میں آئے اور انہیں یہ بات پتہ چلی تو ابا زار و قطار رونے لگے، کیونکہ ان پر نہ صرف گھر کی ذمہ داری تھی بلکہ 2 کنواری بہنیں بھی گھر میں موجود تھیں۔ انہی کی وجہ سے تو ابا نے سعودی عرب آنا قبول کیا تھا اور وہ مجھے اور اماں کو اس وقت چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے جب میں صرف 6 مہینے کا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سے 2 بہنوں کی شادیاں ابا کر چکے تھے، لیکن 2 بہنیں ابھی بھی باقی تھیں اور یہی سوچ کر ابا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ ابا کو اس قدر پریشان اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ میں یہاں آنے کی ضد کرتا اور نہ ہی ابا کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا۔ میری نظر میں تو ابا کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اسپتال والوں نے 1 ہفتے میں ہی ابا کو چھٹی دے دی تھی اور ہم ابا کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں واپس آئے تو ابا کہنے لگے کہ اب پاکستان واپس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ابا فی الحال کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں تھے اور کمپنی ابا کا خرچہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں یہاں رہنا اور یہاں کے خرچے کرنا ابا کے بس میں نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو بھی جمع پونجی ہے وہ بھی اسی طرح خرچ ہو جائے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پاکستان چلتے ہیں۔ ابا کی بات میں میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر بھی ہمارا گزارا ہونا مشکل ہے۔ ابا کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہم واپس جانے کا سوچیں گے، اس وقت تو آپ فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ لیکن میرا ہرگز بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہی یہاں کوئی کام ڈھونڈوں گا اور جب تک ابا صحتیاب نہیں ہوتے اپنے ابا کے ساتھ رہ کر ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پاکستان نہیں تھا، یہاں ایک 12 سال کے بچے کو کوئی بھی آسانی سے کام پر رکھ لے۔ یہاں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قانون موجود تھے اور 12 سال کے کم سن بچے سے کام کروانا جرم تھا۔ 2 ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے لیے یہاں کام ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے۔ ابا اپارٹمنٹ میں رہ کر خود مزید بیمار محسوس کر رہے تھے، اس لیے میں قریبی پارک میں ابا کو گھمانے کی غرض سے لے آیا۔ وہیں میری ملاقات عربی عورت انابیہ سے ہوئی۔ وہ دور بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظر مستقل مجھ پر اور ابا پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ابا کا کوئی جاننے والا مل گیا اور ابا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوئے تو اس عورت نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں فوراً ہی چلا گیا۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی، مسکرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ تمہارے ابا کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام زہیب ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا لیکن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی پھر تم لوگوں کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے بتا دیا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ابا کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور ہم واپس نہیں جانا چاہتے، مجھے یہاں کوئی کام نہیں مل رہا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہاں کوئی کام مل جائے تو پھر تم وہ کام کر لو گے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر کوئی کام ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ پاکستان جا کر ہمارا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ 6 مہینے تک میں ابا کی جگہ ان کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت پسند آئے ہو، مجھے تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کی ضرورت تھی جو محنت سے جینا چراتا ہو اور اپنے گھر والوں کی خاطر جان تک دینے کو راضی ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نوکری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے جسے کر کے تمہیں خوشی بھی ہوگی اور پیسے بھی بہت اچھے ملیں گے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی خوش ہو گیا تھا، اگر مجھے کوئی کام مل جاتا تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کام بتا دیں، میں اپنے ابا سے بات کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں روز صبح سے شام تک
मेरे बंगले पर आना होगा और फिर महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अगर तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। उसकी उर्दू काफ़ी बेहतर थी, ऐसा लगता था जैसे वो काफ़ी उर्दू बोलती है। मैंने उसे कहा कि आप मुझे काम तो बता दें, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी सुहेब इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे मज़ीद कोई सवाल पूछता उससे पहले ही अब्बा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और अब्बा के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे, शायद उन्हें बैठने में अब तकलीफ़ हो रही थी। मैं फ़ौरन अब्बा के पास पलटा तो वो हैरत से मुझे पूछने लगे कि तुम अरबी औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने अब्बा को सरसरी तौर पर बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगा था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझसे से छोटे बच्चे से वो और क्या करवा सकती थी। इसलिए मैंने अब्बा को यही बात बता दी। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे मेरे बच्चे अभी तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वो औरत कौन है और तुमसे कितना काम करवाएगी। अब्बा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि अब्बा सिर्फ 6 महीने की तो बात है, एक दफ़ा आप ठीक हो जाएं तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को राज़ी है तो फिर मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं। अब्बा ने नम आँखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मेरा 12 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने अब्बा से कहा कि एक दफ़ा उस औरत पर भरोसा करके देख लें, मैं काम पर एक दिन जाऊँगा और अगर मुझे काम समझ आ जाएगा तो करूँगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और हालात की नज़ाकत देख कर अब्बा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने पलट कर उस बेंच की तरफ देखा जो अब खाली पड़ी थी। वो अरबी औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊँगा और काम देखूँगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात में यही सोचता रहा कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और पप्पो का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों पप्पो की उम्र हो चुकी थी और जहेज़ की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरा बाप कब से परदेस काट रहा था। अगली सुबह मैं अब्बा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता करवा के बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए अब्बा को मुझे अकेले भेजते हुए खौफ नहीं हुआ। मैंने अब्बा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। औरत के बंगले पर पहुँचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मीटर देखा और कहने लगा तुम मालकिन के पास रहोगे। उसका लहजा बहुत ही अजीब सा था और जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था वो भी मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। चौकीदार ने इंटरकॉम के जरिए एक मुलाजमा को बाहर बुलाया। वो एक उढेर उम्र हिंदू औरत थी। चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती हैं, मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी के खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे वो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला क्या था, आलीशान महल था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सोने का महल हो। मैं एक बड़े से जहाज़ी साइज सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत पेश किया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई ख़ास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। बुरके में तो वो बहुत अलग मालूम होती थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने, बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। बिलाशुबा वो हसीन थी और उस वक्त तो और भी हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें अदब से झुका ली थी। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम की गर्ज से आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन कहने लगी कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी सुहेल, काम तो तुम्हें वाकई ईमानदारी से करना होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फ़िलहाल तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। उसी मुलाजमा ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दी। मैं जब से यहाँ आया था अब्बा की तबीयत को लेकर इस कदर परेशान था कि ना ही ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा अक्स वाज़ेह दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं वाकई ही बहुत खूबसूरत था। हूँ बहू अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंगत और नीली आंखें मुझे दूसरों से मुमताज़ बनाती थी। मैं हर जगह अपनी आंखों से पहचाना चाहता था। मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम मरीना था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें आज से उठने बैठने के आदाब सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, अरबों के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुत अरबी भी सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे भला अरबों के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी और उठने बैठने के आदाब मुझे मालूम थे। फिर मालकिन खास कर एक औरत क्यों लाई थी? मुझे काम ही तो करना था, फिर अरबों के तरीके सीख कर मैं क्या करता?
वो कहने लगी कि 1 महीने तक ये तुम्हें पूरी तरह ट्रेन करेगी और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। ये 1 महीना तुम्हें मरीना के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक मरीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे मरीना के हवाले करके चली गई थी। मरीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वो बहुत मोहब्बत से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि टेबल पर बैठने के मैनर्स भी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम के वक्त घर लौटा तो अब्बा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितनी मशक्क़त करवाई गई। और जब मैंने अब्बा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और अरबों के तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से अब्बा की मुस्कुराने की वजह पूछी तो अब्बा कहने लगे कि ये अरबी लोग बहुत अजीब होते हैं। एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर मुलाजिम को ऐसे कैसे रख सकते हैं। यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखा कर इस काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख लो। हो सकता है मैं जल्दी से एहतियाब हो जाऊँ तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊँगा और तुम्हें वापस भेज दूँगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मेरी जुदाई का दुख उठा रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूँ। अब्बा ठीक ही कह रहे थे, वाकई अम्मा मेरे बगैर बहुत अकेली हो गई होगी। मैंने पाबंदी से मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नए तरीके से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 15 दिन में ही मुझ में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई थी। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 12 साल का बच्चा हूँ। यहाँ की आबो हवा और फिर अच्छी ग़िज़ा ने मेरी सेहत को रौनक बख्शती थी। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी शहंशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के शौहर को नहीं देखा था, जबकि वो एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके शौहर की तस्वीर आवेज़ा थी। और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके शौहर का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात गए घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती, यहाँ पे शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने मरीना से तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ बाहर ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़ कर शॉपिंग मॉल्स में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान रह जाता, जिसके लिए मुझे तनख्वाह भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने अब्बा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो अब्बा कहते हैं कि शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही हैं, लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती हैं। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक मरीना मुझे ट्रेनिंग देगी और फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था कि जब मेरा काम मुझसे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। फ़िलहाल तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। अब्बा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सकते। और फिर जब मेरी नौकरी लग गई थी तो अब्बा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। अब्बा ने अम्मा को ना ही अब्बा के एक्सीडेंट के बारे में बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। अब्बा अम्मा को शाम के वक्त फ़ोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मेरी शख्सियत पूरी तरह बदल गई। मैं पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गया था और फिर महीने के आखिरी दिन में जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि चलो अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो मरीना मुझे कहीं नजर न आई। नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक दफ़ा भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहा करता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, सुहेब ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा और फिर आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने उस महीने में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरे दिल के साथ और ईमानदारी से करूँगा। और फिर जो कुछ मालकिन ने मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ किस तरह? मैं 12 साल का एक नाबालिग बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना हर तरह की आसाइश दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है, अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं क्योंकि इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम अरबी औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर रश करते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे शौहरों को अयाशियों की आदत हो गई है। एक वक्त में हरम बनाकर कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी बीवियों को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे शौहर को मुझसे कहीं ज़्यादा उन औरतों में दिलचस्पी है जिसे उसने नाजायज़ तरीक़ों से अपने पास रखा हुआ है। इसलिए मैं भी महीने का एक दिन नाबालिग लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं हामला हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरा शौहर भी तो मुझसे धोखा कर रहा है, तो फिर मैं क्यों उसे धोखा न दूँ।
मैं बदले की आग में जल रही हूँ और ये इसी तरह ठंडी होती है जब मैं किसी नाबालिग को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं थी कि मैं उसे मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखना चाहती। लेकिन तुम में इतनी खूबसूरती थी कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों के एवज तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने बाप को अपनी माँ के पास वापस भेज देना। मैं नाबालिग ज़रूर था लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारे नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाए और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं गुनाह के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की तरबियत अहमियत रखती थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने बाप के पास चला आया और अपने बाप से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा, ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने वतन चलते हैं, एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी ज़रा सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास मुलाजमत कर रहे थे। और मेरी मालकिन की तो नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं भाप नहीं पाया था। चौकीदार का वो मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने बाप के साथ वापसी की फ़्लाइट ले चुका था और आने वाली ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन गुनाहों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था रिस्क देना इंसान के हाथ में नहीं बल्कि रब के हाथ में है। शाम को जो फरिश्ते हमारे गुनाह लेकर जाते हैं, सुबह वही फरिश्ते हमारा रिस्क लेकर लौटते हैं। मुझे यकीन था कि मेरे रब ने हमारे लिए यकीनन पाकिस्तान में किसी न किसी रिस्क का इंतज़ाम कर रखा होगा। पहले के अरब लोग अलग थे और आजकल के अरब लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। दौलत ने उन्हें दीन से गुमराह कर दिया है और इस बात का अंदाज़ा हर इंसान लगा सकता है, क्योंकि अब अरब दुनिया में मंदिरों से लेकर शराब खानों तक की संगे बुनियाद